السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور امیگریشن ٹپس میں ایک بار پھر آپ کو جو ہے خوش آمدید۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نیو ایئر کا جو ہے یہ فرسٹ پروگرام جو ہے وہ امیگریشن ٹپس کا آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ گزشتہ پروگرام جو ہے وہ ہم نے 2020 میں کیا تھا اور یہ فریش ایپیسوڈ جو ہے وہ اس سال کی جو ہے ہم آپ کے لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کا نیا سال جو ہے وہ اچھا گزرے گا، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جس پینڈیمک میں ہم سب گزر رہے ہیں اور اس ورچوئل جو ہے وہ ایک اسٹوڈیو کے تھرو آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں امیگریشن ٹپس میں، تو آنے والے وقت میں حالات بہتر ہوں تو ہم پراپر اسٹوڈیو سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ امیگریشن ٹپس جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے یاسمین طیبی جی ہوتی ہیں، اور اس بار بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ورچوئل لنک پر جو ہے وہ کنیکٹ ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے ان کو جو ہے پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ نئے سال میں جو ہے ان کے کیا پلانز ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ پروگرام امیگریشن سے ریلیٹ ہے تو امیگریشن کے جو ہیں وہ کیا نئے قوانین ہیں، کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں، کیا چیزیں بند ہو رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یاسمین طیبی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم یاسمین طیبی، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کو، سامعین کو میری طرف سے بہت بہت نیا سال مبارک ہو، اور امید کرتے ہیں کہ یہ نیا سال جو ہے انشاءاللہ ہم سب کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ اور جو پینڈیمک کی آپ نے بات کی ہے، آف کورس اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی دعا یہی کریں گے کہ آئندہ جب پروگرام ہو ہم لوگوں کے کچھ مہینوں میں، انشاءاللہ وہ ورچوئل نہ ہو بلکہ ان پرسن اسٹوڈیو میں ہوں۔ اب آ آپ کی جاتے ہیں آواز تھوڑی امیگریشن دیر کے پر۔ لیے جیسا کہ جی ہمارا جو پروگرام کا ٹاپک ہے امیگریشن ٹپس، تو اب نیا سال ہوں، تو شروع ہو گیا، انشاءاللہ ہم سب دعا کر رہے ہیں بالکل کہ نیا سال جو ہے وہ سب کے لیے اچھا ہو۔ تو امیگریشن انشاءاللہ کے لیے اچھا ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونا جا رہا؟ کیا مجھے جو لگ ہے وہ رہا گورنمنٹ مجھے پالیسیز لگ جو ہے رہا وہ ہے اختیار کرنے جا رہی ہیں، کیا فیصلے ہونے میں جا رہے ہیں نئے سال کے بالکل لیے؟ تو تھوڑا سا جو ہے وہ اوور ویو ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے بتائیے۔ ضرور، شکریہ بہت بہت عامر۔ بالکل نیا سال کی جو ابتدا ہوئی ہے، ایک طرح سے ہی سمجھ لیں کہ کل سے ہی باقاعدہ لوگ آفیسز میں اپنے کام کرنا انہوں نے شروع کیا، امیگریشن آفیسرز وغیرہ نے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ کل سے ہی جو پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس کا جو ڈرا متوقع تھا اس سال میں، وہ اس کے ڈرا آنے شروع ہو گئے ہیں۔ کئی لوگوں کو، کئی اسپانسرز کو ان کے پیرنٹس کی جو چٹ مل گئی ہے کہ ہاں آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے، اور یہ اچھی نیوز ہے، اور نیا سال کا آغاز اچھی چیز سے ہوا ہے۔ تو میں بہت پر امید ہوں کہ جو کوٹا گورنمنٹ نے کہا تھا پورا کریں گے 2020 کا، تو اب انشاءاللہ تعالی وہ کوٹا پورا ہونے جا رہا ہے، اور پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس کی یعنی والدین اور جو دادا دادی نانا نانی کی جو امیگریشن کی جو ڈرا ہونے والی تھی وہ اب شروع ہو گئی ہے۔ رفتہ رفتہ سب کے پاس چٹس پہنچ رہی ہیں کہ آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ ایک تو یہ اس کے بارے میں، دوسری یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، جو اسپاؤزل اسپانسرشپ کے حوالے سے کہوں گی کہ جو فائلیں کووڈ کی وجہ سے جن میں تاخیر ہو گئی تھی، وہ فائلیں الحمدللہ کافی حد تک آگے بڑھنا شروع ہوئی ہیں، اور میرے 2 کیسز کل صبح ہی ان کے دونوں کے پاسپورٹ جمع کرانے کے لیٹرز آ گئے ہیں، اور جو اسپانسرز ہیں اور جو اپلیکینٹس ہیں بے انتہا خوش ہیں کہ ہم پاسپورٹ جمع کرائیں گے تو انشاءاللہ آنے کا جلدی سے ان کا موقع ہوگا پھر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسپاؤزل اسپانسرشپ کے جو کیسز رکے ہوئے تھے 2018 اور ارلی 2019 کے، وہ ماشاءاللہ سے وہ پروگرام جو ہے اب جاری ہو گئے ہیں، اور آفیسرز ان پہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بہت خوش آئند بات ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کافی اسپانسرز جو تھے وہ بہت ہی زیادہ، اور اپلیکنٹس جو تھے بہت زیادہ اپسیٹ تھے، اور کافی آواز بھی اٹھائی گئی تھی اس سلسلے میں کہ ہم کو فوقیت کیوں نہیں دی جا رہی ہے، فیملی ری یونیفیکیشن کو فوقیت کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ تو گورنمنٹ نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، وعدہ نبھاتے ہوئے انہوں نے جو اپلیکیشنز تھی ان کو آگے بڑھانا شروع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ کیسز ہیں، ان کے بارے میں بھی میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ کیسز بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو وینکوور بیک لاگ ریڈکشن آفس ہے اس سے خط و کتابیں شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے بہت خوشائند سال ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو 2020 میں جو مشکلات پیش آئیں اور لگ رہا تھا کہ آگے معاملہ بڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو وہ کافی لوگ نا امید سے ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس سال کی شروعات بہت اچھی ہوئی ہیں، اور آگے بھی اللہ نے چاہا تو ضرور اس میں اور تیزی آئے گی۔
इंशाल्लाह जी, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हालात बेहतर होते जाएंगे इस पेंडेमिक की सिचुएशन, तो जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो भी फास्ट होता चला जाएगा। कैन एम सोल्यूशन से जो है हमारे साथ यास्मीन तैयबी जो है वो प्रोग्राम में शामिल है। canemsolution.ca पर जाके आप तमाम डिटेल्स दे सकती हैं। यास्मीन तैयबी, हमारे देखने वालों सुनने वालों के लिए एक बार नंबर अपना ज़रूर बता दीजिए। जरूर 905-513-0012, 905-513-0012, और मेरा ईमेल एड्रेस है info@canimmsolutions.ca, CANIMM solutions.ca। आमिर, आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि माशाल्लाह से ये प्रोग्राम न सिर्फ कनाडा में बल्कि और जगह भी देखा जाता है, तो काफी यूएसए से भी मुझे कॉल्स आई हैं, और यूएसए से जो कॉल्स आई है मोस्टली वो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो बिजनेस इमिग्रेशन की कैटेगरीज में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि साल हर साल से लोग वहां पे मकीन है और उनके बिजनेसेस वो चला रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड है, तो वो देख रहे हैं कि कनाडा में बिजनेस का क्या बिजनेस की क्या सूरत हाल हो सकती है यहाँ पर आकर एज ए बिजनेस पर्सन। तो मैं ये बता सकती हूँ कि कई प्रोग्राम्स हैं कनाडा में, एक नहीं है, कई प्रोग्राम्स हैं, हर सूबे के भी अलग अलग प्रोग्राम है, हर प्रोविंस के यानी, और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट है सूबे के हिसाब से। ऑन्टेरियो में भी एक इमिग्रेशन का बिजनेस का प्रोग्राम है, और स्टार्टअप वीजा भी प्रोग्राम है, और इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें अगर आपकी ओवरसीज कंपनी है एस्टैब्लिश्ड और आप चाहते हैं कि कनाडा में उसकी ब्रांच खोलें, और किसी को अपने जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर है या मैनेजेरियल या सुपरवाइजरी पोस्ट पर है उसको कनाडा भेजें, ताकि वो कनाडा का जो बिजनेस है उसको संभाल सके। तो उसके भी हमने काफी केसेस माशाल्लाह कामयाबी से किए हैं। तो इस सिलसिले में भी अगर किसी को मालूम करना है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो प्लीज जरूर राब्ता कीजिएगा info@canimmsolutions.ca पर। और एक और चीज ये है कि जिन लोगों के ऑलरेडी बिजनेसेस हैं यहाँ पर, देखें कि एकदम हलचल पैदा हुई है टेक अवे या टेक आउट फूड्स में। सबको पता है कि यहाँ पे लोग मोस्टली जो रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, तो वो टेक आउट फोन पे ऑर्डर कर दिया और आपने पिक कर लिया, या नहीं तो उबर ईट से आपने मंगा लिया। तो इस तरह के रेस्टोरेंट्स में कुक्स की और शेफ्स की डिमांड काफी बढ़ गई है, और वो बिजनेसेस जो अपने टेक अवे और टेक आउट के बिजनेस में देख रहे हैं कि तवक्को और बढ़ने की हो रही है, तो वो LMIA बेस्ड जॉब ऑफर दे सकते हैं किसी फॉरेन नेशनल को जिसके पास उनके बिजनेस का तजर्बा हो, खाना पकाने का, या जो भी। मैं सिर्फ रेस्टोरेंट के हवाले से इस वक्त बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें रेस्टोरेंट बिजनेस में और IT बिजनेस में बहुत बूम आया है इस वक्त। क्योंकि आप देख लें, मैं और आप भी इस वक्त टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही ये सब कर रहे हैं, तो IT स्पेशलिस्ट और जो दीगर जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनमें भी काफी ग्रोथ हुई है। तो मैं कहूंगी कि अगर इस तरह के बिजनेसेस के मालिकान ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी को बाहर से शेफ को या कुक को बुला लें, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त नहीं मौजूद है उनके फुलफिल करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट्स, तो वो भी एक अच्छा प्रोग्राम है LMIA बेस्ड। जी बिल्कुल। तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो हमें सुन भी रहे हैं, कैन एम सोल्यूशन से हमारे साथ यास्मीन तैयबी जी हैं इमिग्रेशन टिप्स में, और आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं canimmigration.ca, और तमाम मालूमात या आप गूगल कर लें यास्मीन तैयबी जो है वो, तो आप जो है सारी मालूमात जो है वो गूगल यास्मीन तैयबी की गूगल आपको तो जो है आजकल परफेक्ट है, गूगल जी आप बिल्कुल। डालेंगे गूगल में तो गूगल जी बाबा जो हैं वो सारी चीज़ें बता देते हैं, तो आप कैन एम एग्जैक्टली सोल्यूशन गूगल कर लें या यास्मीन तैयबी गूगल कर लें, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो आपको सारी जी डिटेल्स जो हैं, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, सब जो है इनकी वेबसाइट पे जो है वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक सवाल जी जो मेरे पास बहुत आया अभी लास्ट कुछ हफ्तों में जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, और वो यहाँ के लोगों का है यास्मीन तैयबी, जो लोग जो हैं वो सिटीज़नशिप ओथ की कुछ बात हो रही थी और जो टेस्ट की बात हो रही थी, तो नए साल में जो है वो क्या प्रोग्रेस है या किस तरीके से, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि ऑनलाइन जो है वो टेस्ट होंगे और ऑनलाइन ही जो है वो ओथ सेरेमनी भी होने जाएंगी। तो जो जिन लोगों जी ने PR से या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो कोई उनके लिए कोई हम्म। अपडेट हो? अच्छा, ऐसा है कि जो केसेस मैंने 2018 2019 में जो दाखिल किए थे, उनमें एक दो के ओथ सेरेमनीज हुई हैं ऑनलाइन, और उनको बस ये शर्त ये थी कि उनको कनाडा में होना लाजमी है। बेशक ऑनलाइन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, और ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जिन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, वो
बाहर चले गए या बाहर हैं, वो समझते हैं कि ऑनलाइन ओवरसीज से भी हो सकता है। नहीं, शर्त ये है कि आपको कनाडा में होना ज़रूरी है और ऑनलाइन ओथ आप ले सकते हैं। और सुनने में ये भी आया है, जैसे आपने कहा कि अगर मज़ीद ताख़ीर कोविड की वजह से होती है, तो और जैसे प्रोग्राम्स को ऑनलाइन किया गया है, हो सकता है कि ये टेस्ट वग़ैरह भी इसी तरह से, जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एग्ज़ाम ले रही हैं, उसी तरीके से लग रहा है कि ऐसा ही होगा। लेकिन अभी तक मेरे किसी क्लाइंट के पास ऐसा आया नहीं है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो, तो मेरे पास अभी नहीं आया है। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि हर चीज क्योंकि ऑनलाइन आजकल हो ही रही है, तो व्हाई नॉट, इसको क्यों डिले किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के केसेस अटके हुए हैं सिटीजनशिप के हवाले से। कैन एम सोल्यूशन से हमारे साथ जो है यास्मीन तैयबी जो है प्रोग्राम में शामिल है। आप इनकी वेबसाइट canem-immigration.ca पर जाकर कैन एम सॉल्यूशंस, कैन एम जी canem-solution.ca राइट, राइट, सॉल्यूशंस canem-solution.ca पर जाकर जो है वो आप तमाम मालूमात जो है वो इनकी वेबसाइट से ले सकती हैं। यास्मीन तैयबी जो ऑफिस है वो आपको इमिग्रेशन के साथ साथ अगर आपके उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू भी जो ट्रांसलेशन है वो भी जो है इनका जो ऑफिस है और जो ये सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म की जो ट्रांसलेशन करानी है, चाहे इंग्लिश से उर्दू हो या उर्दू से इंग्लिश हो, तो आप यास्मीन तैयबी से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जी यास्मीन तैयबी, अगर कोई चीज़ आपने ऐड करनी है इसमें, अगर कोई ऐसी चीज़ जो कैटेगरी हो जो हमने मिस की हो तो प्लीज़। नहीं, बिल्कुल मैं करूंगी। देखिए, सबसे ज्यादा जो हमारे जो मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे ज्यादा जो मेरी सर्विसेज हैं वो इत्तेफाक से स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की है। और मैं उस बारे में कहूंगी कि मुझे लोग काफी राब्ता करते हैं इसी हवाले से, और मैं उनको कहती हूँ कि आप जाने से पहले, शादी या चाहे आपकी हो, आपके बच्चों की हो, आप जाने से पहले मुझसे राब्ता करें ताकि मैं आपको फुल पैकेज तैयार करके आपके हाथ में दे दूं, यूएसबी में लेटेस्ट फॉर्म्स, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चाहिए, ताकि जब आप जाएं वहां पर शादी के बाद तो वापस आए तो आपके हाथ में तमाम चीजें मौजूद हो, पूरा पुलंदा, रसीदें वगैरह वगैरह, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, तस्वीरें, सारी चीजें, ताकि आपके काम में फिर डिले ना हो। वरना तो लोग शादी करके आ जाते हैं, फिर एक एक डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं, एक एक चीज मंगा रहे हैं, तो उसमें ताखिर भी होती है, डीएचएल के खर्चे भी आपके बढ़ जाते हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त यही है कि अगर वो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों की शादी के लिए पाकिस्तान जाएं या कहीं और भी, जहां अगर इंडियन भी सुन रहे हैं तो जहां पर भी जाएं शादी करने, मुझसे राब्ता करें। और जरूरी नहीं आप मुझसे पूरा काम कराएं, अगर आपको सिर्फ कंसल्टेशन चाहिए, फॉर श्योर मैं आपको पूरा पैकेज बना के दे सकती हूँ। उसकी फीस डिफरेंट है और वो आप फिर खुद से भी कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे करवाना चाहें, मोस्ट वेलकम। लेकिन मेरे पास ये सहूलत भी मौजूद है कि मैं लोगों को फुल पैकेज भी देती हूँ ताकि वो डू इट योर सेल्फर के तौर पर खुद भी कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, आपने इतना वक्त दिया। जी, बिल्कुल, थैंक आपकी यू। इस बात से मैं एक लाइटर नोट पे मुझे भी बात याद आई, आप कह रही हैं कि आपसे मिलकर जाएं, तो मैं ये कहूँगा जो जो शादी का प्लान कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में या यहाँ पर भी जो हैं, जो यंग बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो वो कहते हैं ना कि निकाह के लिए जो है वो काजी का होना ज़रूरी है। तो उस काजी के साथ साथ मैं कहूँगा कि इमिग्रेशन के लिए यास्मीन तैयबी का होना जो है वो ज़रूरी है। अगर आप थैंक यू। स्पाउसल उसमें जा रहे हैं तो आप यास्मीन तैयबी से जो है वो ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि जैसे कि बिल्कुल, काजी ने जो है वो उसके बगैर आपका निकाह नहीं होगा। तो अगर ये निकाह कर लिया तो उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो, अगर आपने इमिग्रेशन लेनी है तो यास्मीन इंशाल्लाह तैयबी से जो है ज़रूर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह। एक और बात, ओहो, इस हवाले से एक और बात याद आ गई कि जी अक्सर लोग अभी तक इस मुगालते में हैं कि अगर निकाह करके आ जाए या फोन पर निकाह हो जाए। देखिए, फोन पर निकाह या प्रॉक्सी शादी अब खत्म हो गई, कई जी सालों से है ही नहीं सिस्टम में ये। तो जिसको भी शादी करना है, फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, जिस्मानी तौर पर स्पॉन्सर को जाना जरूरी है ओवरसीज, अनलेस खुदा ना खास्ता कोई डिसेबिलिटी है। अगर डिसेबिलिटी है उसके लिए एक एग्जेम्पशन या इस्तिस्ना है, अदरवाइज जो माशाल्लाह से नॉर्मल लोग हैं उनको जाके खुद बाज़ाब्ता जाके शादी करनी होती है, उसके बाद ही स्पॉन्सरशिप हो सकता है। निकाह की बेस पे नहीं सिर्फ हो सकता, आपका केस रिफ्यूज हो सकता है अगर रुखसती नहीं हुई हो। तो ये मुझे ऐड करना बहुत जरूरी था क्योंकि अभी तक लोगों के जहन में ही कंफ्यूजन है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एक बार अपना नंबर जो है हमारे सुनने वाले हो, देखने वालों के जरूर, जरूर। 9055130012, 9055130012। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी।
जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफ़िज़। यास्मीन तैयबी और तमाम लोगों का जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो हमें सुन भी रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने कोई भी रिलेटेड आपका इमिग्रेशन से सवाल है तो आप यास्मीन तैयबी से कांटेक्ट कर सकते हैं इनकी canmsolution.ca पर जाकर, और वहाँ तमाम डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। आज के लिए जो है वो मुझे आमिर अहमद को और यास्मीन तैयबी को, हमारी इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स को जो है वो इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ जो है इमिग्रेशन टिप्स में आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।